السلام علیکم، ویلکم ٹو ناول سوتو لائبریری چینل۔ آج جو میں آپ کے ناول لکھ رہی ہوں اس کا نام ہے دیار من جہاں خواہش پوری ہوتی ہے۔ اس کے رائٹر ہیں جی عباسی۔ تو اس ناول کو شروع کرتے ہیں۔ تم آخر میری جان چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ تنگ آ گئی ہوں میں ان روز روز کے جھگڑوں سے۔ جی تو میرا یہی چاہتا ہے، پر اپنے بیٹے کا چہرہ دیکھ کر چپ ہو جاتا ہوں کہ ہمارے فیصلے سے نقصان صرف اس معصوم کا ہونا ہے۔ اگر اتنی ہی اس کی پرواہ ہے تو آج ہم یوں نہ لڑ رہے ہوتے۔ اللہ گواہ ہے مشال، میں نے تمہاری ہر ضروریات خواہش کو پورا کرنا چاہا ہے، لیکن تم کسی بھی طرح خوش نہیں ہوتی۔ ہاں تو چھوڑ دو مجھے جب اتنی ہی بری ہوں۔ دراصل حقیقت یہ ہے کہ تم اپنی خامیاں چھپانے کے لیے مجھ پر الزام تراشی کر رہے ہو، جبکہ تم خود ایک بیکار بلکہ ایک نامرد ہو۔ مشال، اس کی دھاڑ نے ایک پل کو مشال کو ساکت کر دیا، مگر اگلے ہی لمحے خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، کیا ہوا؟ برداشت نہیں ہو رہا؟ اگر اتنی ہمت ہے تو دو مجھے طلاق، کر دو مجھے آزاد۔ ٹھیک ہے، میں بھی بس اپنے بیٹے کی وجہ سے خاموش تھا، مگر اب تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو ٹھیک ہے۔ میں دریاب عباسی اپنے ہوش و حواس میں مشال حمید کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ ارے اتنی دیر لگا دی، قریب ہی بازار گئی تھی، اس میں بھی اتنی دیر سے گھر لوٹی ہو۔ جاؤ جا کر تیار ہو جاؤ، لڑکے والے بس آتے ہی ہوں گے۔ میں ذرا کچن دیکھ لوں سب ٹھیک بنا ہے یا نہیں۔ رباب بیگم کہتی کچن کی جانب چل دی۔ وہ بھی تھکے تھکے قدم اٹھاتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ کوئی 5ویں بار تھا کہ پھر اسے کوئی دیکھنے آ رہا تھا، اور ہر بار کی طرح اس بار بھی انکار ہو جانا تھا۔ وہ تھک گئی تھی یوں سب کے سامنے آتے آتے۔ آخر کیا برائی ہے مجھ میں کہ ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی ایک سانولی لڑکی، بس تو کیا میرے پاس دل نہیں، میرے کوئی جذبات نہیں؟ وہ آئینے میں نظر آتے اپنے عکس کو دیکھ کر سوچنے لگی، ایسا نہیں تھا کہ وہ خوبصورت نہیں تھی، وہ ایک خوبصورت اور پرکشش لڑکی تھی، بس اس کی چائے جیسی رنگت اور گھریلو غربت نے گھر آئے کئی رشتوں کو لوٹا دیا تھا۔ مہمان آ گئے اور تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ وہ جو اپنی سوچوں میں گم تھی، رباب بیگم کی بات پر سوچوں کے بھنور سے باہر آئی۔ بس امی ابھی تیار ہو کر آئی، جلدی آؤ، باہر سب انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی الماری کی جانب بڑی، ہلکے کام والا سادہ سا شلوار قمیص کا سور نکال کر باتھ روم میں گھس گئی۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی اپنے آفس سے آیا تھا اور اب اپنے بیڈ پر لیٹا چھت کو گھور رہا تھا جب تہمینہ بیگم دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ دراب ان کو دیکھ کر اٹھ بیٹھا۔ مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، وہ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ جی ماما بولیں، کیا ہوا؟ اسامہ نے کچھ کیا ہے؟ نہیں، پھر کیا بات ہے؟ بیٹا میں چاہتی ہوں اب تم شادی کر لو، 1 سال ہو گئے ہے، کم سے کم پتہ اپنا نہیں تو اپنے بچے کے بارے میں ہی تو سوچو۔ ابھی 3 سال کا ہے، اسے ماں کی ضرورت ہے، تم شادی کر لو گے تو اس سے بھی ماں مل جائے گی۔ تہمینہ بیگم کی بات پر وہ جھنجھلا کر رہ گیا۔ آپ سمجھتی کیوں نہیں ہیں؟ بھلا ایلٹ کلاس میں ایسی کون سی عورت ہوگی جو کسی دوسری عورت کے بچے کو سنبھالے؟ یہاں تو ان سے اپنے بچے نہیں سنبھالے جاتے۔ دراب کی بات پر تہمینہ بیگم کچھ پل کے لیے خاموش ہو گئی۔ آخر جب ایک ماں اپنی اولاد کی پرواہ کیے بغیر اسے چھوڑ کر جا سکتی ہے تو کوئی دوسری عورت اس کی اولاد کو کیا سنبھالے گی؟ تم اس کی فکر نہیں کرو، بس شادی کے لیے تیار ہو تو مجھے بتاؤ، دیکھنا میں ایسی لڑکی ڈھونڈ کر لاؤں گی جو تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے بچے کو بھی سنبھال لے گی۔ ایسی کوئی عورت ہوگی تو ملے گی نا؟ میں نے کہا نا، تم بس ایک بار ہاں کر دو، باقی میں خود دیکھ لوں گی۔ اچھے سے سوچ لو پھر مجھے جواب دے دینا، لیکن اگر تمہارا جواب نہ میں ہوا تو بھول جانا تمہاری کوئی ماں بھی ہے۔ وہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ دراب نے سر ہاتھوں میں گرا لیا۔ تہمینہ بیگم فیصلہ اسے سونپنے کے ساتھ ساتھ دھمکا بھی گئی تھی کہ جواب ان کی خواہش کے برعکس ہوا تو وہ کبھی اس سے ملیں گی نہیں۔ وہ کھڑکی میں کھڑی افق پر نظر آتے آفتاب کو دیکھ رہی تھی۔ آج پھر اس کے لیے آنے والا رشتہ واپس لوٹ گیا تھا۔ اب تو یہ اس کے لیے آئے دن کی بات ہو گئی تھی، جب وہ خود کو سنبھالتی کہ پھر کوئی آ جاتا اور اسے بکھیر کر چلا جاتا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ احساس کمتری کا شکار ہو گئی تھی۔ دانین، ماں کی آواز پر وہ چون کر مڑی، دیکھا تو دروازے پر رباب بیگم کھڑی تھی۔ وہاں کیوں کھڑی ہیں؟ امی اندر آ جائیں۔ دانین کے کہنے پر اس کے برابر میں آ کھڑی ہو گئی تھی۔ نظر باہر جمال لی جہاں جگمگاتا شہر آباد تھا۔ بیٹا دل چھوٹا نہیں کرتے، اللہ نے جس کو تمہارے نصیب میں بنایا ہوگا وہ خود تم تک چل کر آئے گا۔ میں اداس نہیں ہوں امی، بس یہ سوچ رہی ہوں، کیا سانولا رنگ ہونا اتنا بڑا عیب ہے یا غربت کہ جو کوئی بھی آتا ہے انکار کر جاتا ہے؟ کہا نا دل چھوٹا نہ کرو، دیکھنا میری بیٹی کے لیے کوئی شہزادوں کی سی آن بان والا لڑکا ہی آئے گا جو دنیا کی ہر آسائش تمہارے قدموں میں لا کر رکھ دے گا، اتنی محبت دے گا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے کرتے تھک جاؤ گی، مگر تمہاری جھولی کبھی خالی نہیں رہے گی۔ یہ ایک ماں کی دعا ہے۔ رباب بیگم کی بات پہ سے مسکرا کے ان کے سر ان کے شانے پر رکھ لیا۔ وہ جانتی تھی کہ دنیا کی سب مائیں اپنے بچوں کے لیے ایسی ہی دعائیں کرتی ہیں، یہ پر سب کی دعائیں قبول ہو ضروری تو نہیں ہے۔
सूरज की किरणें चारों जानी फैल चुकी थी। वो जल्दी जल्दी चीज़ें समेट कर कमरे से बाहर निकले। स्कूल के लिए आज इसे काफ़ी देर हो गई थी। अपने कदम बाहर की जानब बढ़ती अभी वो निकल ही रही थी कि जब रबाब बेगम की आवाज़ पर रुक गई। बेटा नाश्ता तो करते जाओ। अम्मी मैं पहले ही लेट हो गई हूँ, नाश्ते के लिए रुकी तो छुट्टी ही हो जाएगी। तो क्या दोपहर तक भूखी रहोगी? नहीं अम्मी, मैं रास्ते में से कुछ खरीद के खा लूँगी। आप इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़। दानी ने इनके गले में बाहें डालकर प्यार करती बाहर निकल गई। रबाब बेगम इसकी जल्दबाजी पर मुस्कुरा कर रह गई। मामा आप प्लीज़ आज उसामा को स्कूल में दाखिल के लिए ले जाइएगा। मेरी आज बहुत अहम मीटिंग है, वरना मैं खुद ले जाता। दुराब डाइनिंग टेबल पर बैठता हुआ गोया हुआ, तुम फिक्र नहीं करो, मैं ले जाऊंगी, बस तुम अच्छे से नाश्ता करो। तमीना बेगम इसी से कहकर उसामा की तरफ जो बराबर में बैठा नाश्ता खा कम गिरा ज़्यादा रहा था। तमीना बेगम को देखने पर उसामा भी मुस्कुरा दी। अच्छा मामा मैं चलता हूँ। वो खड़े होते हुए बोला, नाश्ता तो ठीक से करते जाओ। कर लिया मैंने, अब चलता हूँ वरना देर हो जाएगी। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना और उसामा की फ़िक्र नहीं करना, मैं इसे याद से स्कूल ले जाऊँगी। ठीक है मामा, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा। बेटे को जाते देखते वो दिल में इसकी खुशियों की दुआएं करने लगी, जिन्हें ना जाने किसकी नज़र लग गई थी। आप फिक्र ना करें, मैं अभी इंचार्ज से बोलती हूँ, वो सामा को क्लास में ले जाएंगी। मैडम सबा ने मुस्कुराते हुए कहा और एक नज़र सामा को देखा, जिसकी शक्ल से लग रहा था कि वो अभी रो देगा। उन्होंने बेल बजाई तो एक खुश शक्ल लड़की ऑफिस में दाखिल हुई। यस मैडम, आपने बुलाया? मिस सानिया और सामा को आप क्लास में ले जाएं ताकि वो स्कूल के माहौल में अच्छे से एडजस्ट हो सके। ओके मैडम। वो कहकर सामा की तरफ बड़ी, जिसे देखते ही आपकी बार सामा ने बाआवाज़ बुलंद रोना शुरू कर दिया था। सामा रो नहीं बेटा, दादो इधर ही हैं, बस आप एक बार क्लास का माहौल देख लो, अच्छे अच्छे दोस्त बना लो। तमीना बेगम ने प्यार से समझाना चाहा, मगर इसके रोने में मज़ीद इजाफा हो गया। इतना प्यारा बच्चा भला क्यों रो रहा है? अकब से आती आवाज़ पर सबने दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ दानीन खड़ी थी। सबके दरवाजे की तरफ पुश थी, इसलिए दरवाजे पर खड़ी दानीन को नहीं देख पाए। मैं कम इन मैडम? यस मिस दानीन, कोई काम था? यस मैडम, ये अटेंडेंस फाइल देनी थी। फाइल मैडम को पकड़ा कर से रोते हुए उसामा की तरफ देखा, जिसकी हिचकियाँ बन चुकी थी। हेलो बडी, रो क्यों रहे हो आप? दानी ने मुस्कुरा कर कहते अपना हाथ उसामा के आगे किया और जिसे रोते हुए इसने थाम लिया। मुझे क्लास में नहीं जाना। ओह, तो आपको क्लास में नहीं जाना? उसामा ने रोते हुए इस बात में सर हिला दिया। अच्छा तो मेरे साथ चलेंगे, मैं चॉकलेट भी दूंगी। चॉकलेट का नाम सुनते उसामा रोना भूल गया और हाथ दानीन की तरफ बढ़ा दिया, गोया ये ऐलान था कि वो इसे गोद में उठाए। मिस दानीन, आप इन्हें क्लासरूम में ले जाएं। मिस सानिया, आप भी इनके साथ ही जाएं। यस मैडम। उसामा को गोद में उठाए दोनों कहती हुई ऑफिस से बाहर निकल गई। इसे सारी कार्रवाई में तमीना बेगम को, जो खामोश बैठी थी दानीन को देख रही थी, इसके जाते ही फ़ौरन बोली, ये उसामा की टीचर थी? अरे नहीं, ये सेकेंडरी की टीचर हैं, प्राइमरी की नहीं, बहुत काबिल हैं जी, वो तो देख लिया है। तमीना बेगम मुस्कुराते हुए बोली। ये चाय रंगत वाली लड़की इनके दिल को भाई थी। डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए तीनों डिनर में करने में मसरूफ़ थे। खुशगवार माहौल में खाना खाने के बाद चाय का दौर चला तो तमीना बेगम दुराब से मुखातिब हुई। दुराब, तुमने मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं फिर भी बताती चलूँ, मैंने तुम्हारे लिए लड़की देख ली है। दुराब, जो चाय पीने में मसरूफ़ था, तमीना बेगम की बात पर इसे यकदम फंदा लगा। क्या? हाँ, आज जब मैं उसामा के दाखिले के लिए स्कूल गई थी, वहाँ मुझे एक टीचर मिली थी, माशाल्लाह इतनी प्यारी है, बस क्या बताऊँ, उसकी चाय जैसी रंगत में बिला की कशिश है और उसामा से तो इससे प्यार से पेश आ रही थी मानो इसकी अपनी औलाद हो। तमीना बेगम खुश होते हुए इसे बता रही थी, मामा प्लीज़, वो टीचर है, ये उसकी जॉब है, इसे सबके लिए पैसे मिलते हैं उसे, लेकिन किसी और औरत के बच्चे को माँ की तरह प्यार करने, उसे पालने में बहुत फ़र्क है, आप समझते क्यों नहीं? दुराब झंझलाते हुए बोला। वो एक अच्छी अखलाक की लड़की है और मुझे पूरा यकीन है कि वो एक अच्छी माँ भी साबित होगी उसामा के लिए। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारी माँ हूँ, खुशी चाहती हूँ तुम्हारी, इसलिए मैं अब मज़ीद इनकार नहीं सुनूंगी। वो गुस्से से देखते हुए बोली, ठीक है, जो मर्ज़ी दिल करे आप करे। तहमीना बेगम की ज़िद के बिला आखिर इसने घुटन टेकनी ही पड़े। इसकी तरफ से रजामंदी ज़ाहिर करने पर वो खुशी से खिल उठी। अब बस जल्द उस लड़की के घर रिश्ता लेकर जाना था। एक मिनट भाई, बंद दरवाज़ा खोलने चल कर आता, उड़कर नहीं आता। रुबाब दरवाजे के करीब जाते हुए बोली, जहाँ बाहर कोई बेल पर हाथ रखकर हटाना भूल गया था। दरवाज़ा खोलकर सामने देखा तो अपनी हम उम्र खातून समेत एक खुश शक्ल लड़की नजर आई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी आप कौन? मैं पहचानी नहीं। रुबाब बेगम ने सवाल नज़रों से देखते हुए पूछा। ये दानीन सलमान का घर है। जी आप अंदर आए। रुबाब बेगम इन्हें लेकर कमरे में आ गई। आप यहाँ बैठे, मैं बस अभी आई। सोफ़े की तरफ इशारा करते हुए बोली, अरे नहीं बहन, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस हम आपसे कुछ ज़रूरी बात करने आए हैं। जी बोलें, क्या बात है? रुबाब बेगम भी इनके कहने पर सामने वाले सोफ़े पर बैठ गई। ज़ेहन में हज़ारों सवाल चल रहे थे, जिसके जवाब सामने मौजूद खातून और इसकी बेटी के पास थे। अरे तुमने आने में देर लगा दी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। दानी के घर में कदम रखते ही रुबाब बेगम गोया हुई। इसने हैरान होते नजर उठाकर घड़ी की तरफ देखा, जिसमें 2 बज रहे थे। कहाँ देर हुई अम्मी? मैं तो रोज़ इसी वक्त आती हूँ। अच्छा, इस सब को छोड़ो, जाओ मुँह हाथ धोकर आओ, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है। दानी ने इस बात में सर हिलाती कमरे की तरफ चली गई। रुबाब बेगम का रवैया इसे हैरान कर रहा था, मगर थकन के बाद इसने पूछने का ख्याल बात के लिए उठाकर रख दिया। उसामा बेटा क्या कर रहे हो? तहमीना बेगम उसामा के पास चली आई, जो लॉन में घास पर बैठा अपने खिलौनों से खेल रहा था। ये देखें दादो, मामा ने मुझे नई
टॉय कार ला कर दी है। वो घास पर कार को चला कर दिखाते हुए बोला, अरे वाह बहुत प्यारी है। अच्छा मुझे ये एक बात बताओ, तुम्हें वो टीचर कैसी लगी थी? तहमीना बेगम ने इसके बात वारते हुए पूछने लगी। कौन सी चीटर? उसामा के सवाल पर तहमीना बेगम की हंसी निकल गई। अरे चीटर नहीं टीचर, उन्होंने आपको चॉकलेट दी थी ना, वो बहुत प्यारी है, उन्होंने मुझे बहुत सारी चॉकलेट दी थी, आपको अच्छी लगी? हाँ बहुत, उसामा ने बाहें खोल कर बताया। अगर हम उनको आपकी मामा बनाते तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? तहमीना ने डरते हुए पूछा। आखिर वो जो भी कर रही थी इसके लिए तो कर रही थी, अगर यही ना कबूल करे तो फ़ायदा क्या? वाकई वो मेरी मामा बनेगी? उसामा ने खुशी से उछलते हुए पूछा। हाँ अगर आप चाहो तो हम इनको आपकी मामा बना देंगे। हाँ मुझे भी मामा चाहिए, मेरे सब दोस्तों की मामा है, मुझे भी चाहिए, आप इनको मेरी मामा बना दे। उसामा खड़े को खुशी से कूदते हुए बोला। इसकी जल्दबाजी देखकर तहमीना बेगम मुस्कुरा दी और प्यार से अपने साथ लगा लिया। बेटा आज तुम्हारे रिश्ते के लिए खातून और इनकी बेटी आई थी। रुबा बेगम ने खाना खाते हुए दानीन से कहा। अम्मी प्लीज़, मैं अब किसी के सामने नहीं आना चाहती, मैं इन तमाम तमाशों से तंग आ गई हूँ। दानीन बजाय से बोली। तुम्हें इनके सामने आने की ज़रूरत नहीं है, वो तुम्हें देख चुकी हैं और पसंद भी कर लिया है। रुबा बेगम ने तनमा से बताया। क्या? कौन है? कहाँ देख लिया मुझे? दानीन ने हैरान होते एकदम सवालों की बौछार शुरू कर दी। अरे आराम से, तुम्हें स्कूल में देखा था, उन्होंने तुम्हारी मैडम से घर का पता लेकर यहाँ तक पहुँच गई तुम्हारे रिश्ते के लिए, पर मैडम ने तो मुझे नहीं बताया इस बारे में। हो सकता है उन्होंने मना किया हो तुम्हें बताने से, लेकिन क्यों? और है कौन ये? आपकी बात दानीन झंझला गई। ये तो मुझे नहीं पता क्यों मना किया, शायद तुम्हारे इल्म में आने से पहले वो सीधा मुझसे बात करना चाहती थी। पर है कौन? मिसेस तहमीना अब्बासी नाम है इनका। क्या तुम्हें स्कूल में मिली थी? तहमीना? नहीं मुझे याद नहीं, दानीन ने सोचते हुए कहा। चलो कोई बात नहीं, वो अपने बेटे की तस्वीर देकर गई हैं, बहुत ही खाते पीते लोग हैं, और तो लड़का भी बिल्कुल शहजादों की सी आन बान वाला है। मुझे तो यकीन ही आ रहा अल्लाह ने मेरी इतनी जल्दी सुन ली। रुबा बेगम की खुशी की इंतहा ना थी। जब इतने ही खाते पीते पैसों वाले हैं तो यहाँ रिश्ता लेकर कैसे आ गए? यकीनन इनके बेटे में कोई फॉल होगा, दानीन मुंह बनाते हुए बोली। नाशुक्री लड़की, वो बहुत सुलझे हुए लोग हैं, और जब अल्लाह ने बैठे बैठाए इतना अच्छा रिश्ता घर भेज दिया है तो अब तो नाशुक्री ना करो। लेकिन अम्मी बस दानीन, मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर तुम्हारे अब्बू जिंदा होते तो बात अलग होती, मगर मैं बेवा औरत हूँ, जवान बेटी को यूँ घर बैठा कर नहीं रख सकती। वैसे भी वो तो जहेज भी नहीं मांग रहे। तुम्हारे अब्बू की जो पेंशन आती है वो घर के किराया और दूसरे अखराजात में चली जाती है, बाकी तुम्हें जो सैलरी मिलती है इससे घर के रोज़मर्रा के खर्चे चलते हैं। अगर कहीं और रिश्ता देखते हैं तो इनके मुतालबात तो ख़त्म नहीं होते। अब तुम बताओ क्या करें? रुबा बेगम की बात पर वो खामोश होगी। ठीक ही तो कह रही थी वो, कहीं इसकी रंगत की वजह से ठुकरा दे जाता तो कहीं गुर्बत की वजह से, लेकिन अब जब रिश्ता खुद चलकर घर आया तो इनकार करना बेवकूफ़ी होगी। ठीक है, जैसा आपको मुनासिब लगे। दानीन की बात पर इनका चेहरा चमक उठा तो वो फ़ौरन बोली। मैंने तुम्हारे कमरे की साइड टेबल पर लड़की की तस्वीर रख दी है, देख लेना। ठीक है। दानीन इस बात में सहलाती उठ गई। अब तो भूख ही उड़ गई थी। अरे गुड़िया तुम कब आई? दोराब लाउंज में दाखिल हुआ तो सामने अपनी छोटी बहन सफीना को बैठे देखा। सफीना शादीशुदा होने के साथ साथ 2 बच्चों की माँ भी थी, बड़ी बेटी लाइबा और छोटा बेटा असद। भाई आज सुबह ही अम्मी ने बुला लिया आपके लिए लड़की जो देखने जाना था। ये अम्मी बीना हथेली पर सरसों जमा लेती हैं। दोराब बधाई देता इसके साथ बैठ गया। हाँ तो ठीक कह रही हैं, वैसे भी भाभी के इंतकाल के बाद उसामा माँ की कमी महसूस करने लगा है। वैसे भी इनके इंतकाल को 1 साल हो गया, अब आपको शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा बच्चे कहाँ हैं? दोराब ने बात बदली। वो घर पर अपनी दादी के पास है, मैं इन्हें साथ नहीं लाई। अच्छा चलो मैं कमरे में जा रहा हूँ, फ्रेश हो जाओ तो फिर तुमसे बात करता हूँ। दोराब कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। ठीक है, और हाँ आपके कमरे में मैंने लड़की की तस्वीर रख दी है, देख लीजिएगा। दोराब बगैर कोई जवाब दिए लाउंज से निकल गया। वो जितना इन बातों से दूर भाग रहा था इतना ही इस मौजू पर बातें हो रही थी। कमरे में दाखिल हुआ तो सामने ही टेबल पर से तस्वीर पर नजर आई। वो सर झटकता हुआ बेड पर गिरने के से अंदाज में बैठ गया। मामा भी एक ही बात के पीछे पड़ गई, मैं शादी नहीं करना चाहता, फिर भी कुछ सुनने को तैयार नहीं। दोराब टेबल पर पड़े लिफाफे को देखकर बड़बड़ाया, ना चाहते हुए भी हाथ लिफाफे की तरफ बढ़ा। तस्वीर निकाल ही रहा था कि बाजारी से वापस टेबल पर पटक दी हूँ। पहली शादी ने तो जैसे बहुत खुशी दी थी ना, जो ये दूसरी शादी भी कर लूँ। दोराब हंकार भरता वॉशरूम में चला गया। इधर दानीन न जाने कितनी बार से तस्वीर को दे चुकी थी। जहाँ वो खुश थी वहाँ दिल घबरा भी रहा था। ये सब एक ख्वाब सा लग रहा था। आंख खुली तो सब खत्म, या अल्लाह करम करिएगा कुछ बुरा ना हो जाए। तस्वीर को देखते बड़बड़ाई और उठकर कमरे से बाहर निकल गई, जहाँ रुबा बेगम ना जाने कितनी ही आवाज़ें दे चुकी थी। दोनों तरफ से रिश्ता पक्का कर दिया गया था। दोराब के कहने पर शादी सादगी से की जा रही थी। अभी अभी इनका निकाह हुआ था और अब रुखसती का शोर मच गया था। दोराब बेगम आंख में आंसू लिए अपने जिगरे के टुकड़े को आज हमेशा हमेशा के लिए रुखसत कर रही थी। दानीन इस वक्त कमरे में मौजूद थी जब रुबा बेगम इसके पास आई। बेटा अब वो ही तुम्हारा घर है, कोशिश करना इस घर में और अपने शोहर के दिल में जगह बना सको। आप फिक्र नहीं करें अम्मी, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। दानी ने इन्हें तसल्ली देते हुए बोले। अच्छा बेटा एक बात है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई। क्या अम्मी? दानी ने नासमझी से इन्हें देखा। बेटा वो रुबा बेगम बोल ही रही थी जब सफीना अंदर आई। आंटी रुखसती का वक्त हो गया, चले सब मेहमान इंतजार कर रहे हैं। हाँ बेटा चलो, वो कहती उठ खड़ी हुई और दानी कमरे से बाहर निकल आई। कुरान सब्र उठाए से सबकी दुआ में रुखसत कर दिया गया। आज से वो दानीन सुलमान से दानीन दोराब बन गई थी और उसी जोड़े में मबलूस वो दोराब के कमरे में मौजूद थी। जब कमरे का
दरवाज़ा खोल कर वो अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। दुराब इसके मुकाबले बैठते हुए आसा से बोला। वालेकुम सलाम। वो धीरे से बोली, घबराहट के मारे इसकी हथेलियाँ पसीने से भीग रही थी। देखो तुम जानती हो ना ये शादी किस वजह से हुई है। आप क्या कह रहे हैं? मैं समझी नहीं। दानी ना समझी से इसकी तरफ देते हुए बोली, मेरा मतलब है कि तुम यहाँ उसामा की वजह से मेरी बीवी के रूम में हो। मैं तुम्हें तुम्हारे सारे हकूक दूंगा, लेकिन तुम्हें भी एक माँ की तरह उसामा का ख्याल करना होगा। आप शादी, मेरा मतलब है उसामा का बेटा है। दुराब की बात से जो ख्याल इसके ज़हन में आया वो पूछे बिना रह सकी, क्या मतलब? तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि मेरी पहले भी शादी हुई थी और उसामा मेरा बेटा है? इसकी बात पर वो उलझ गया। इधर दुराब की बात सुनकर दानी ने बेयकीनी नज़रों से देखते हुए बड़बड़ाई, इतना बड़ा धोखा मुझे किसी ने नहीं बताया। मुझे यकीन है ज़रूर आपकी अम्मी ने ये बात छुपाई होगी, वरना मेरी अम्मी मुझे बता देती। दानी चलाते हुए बेड से नीचे उतरी और उसे देखकर दुराब भी खड़ा हो गया। पर मामा ने तो कहा था कि उन्होंने सब बता दिया है। कुछ नहीं बताया उन्होंने? जाके पूछे, क्यों झूठ बोला, क्यों इतना बड़ा धोखा? दानी रोते हुए नीचे बैठ चली गई। दुराब परेशानी से देखता कमरे से बाहर निकल गया। सूरज की किरणें सीधा इसके चेहरे पर पड़ी थी। उसने आंखें खोलकर देखा तो खुद को फर्श पर लेटा पाया। वो उठ बैठी और खाली खाली नजरों से कमरे का जायजा लेने लगी कि अचानक हर रात का मज़ा इसकी आंखों के सामने लहराया। वो सर झटकती अलमारी से कपड़े निकालकर बाथरूम में चली गई। नहाकर वापस आते ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा दुराब ऑफिस जाने के लिए तैयारी में मसरूफ था। जल्दी तैयार हो जाओ, मामा ने कहा है कि ऑफिस जाते हो तो मैं तुम्हारे घर छोड़ दूँ। दुराब ने आईने में नजर आते इसके अक्स को देखते हुए कहा। वो इस बात में सर हिलाती जल्दी जल्दी तैयारी में लग गई। तैयार होकर वो दोनों एक साथ कमरे से निकले। जब इन्हें डाइनिंग टेबल पर तहमीना बेगम और उसामा बैठे नजर आए। अरे उठ गई तुम? वो दानीन को देखकर मुस्कुरा बोली, जी आओ नाश्ता करो। दोनों बैठ कर इनके कहने पर दोनों जगह संभाल कर बैठ के नाश्ते के दौरान खामोशी छाई रही। अच्छा मामा अब चलते हैं, वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। क्या तुम आज भी ऑफिस जा रहे हो? कम से कम आज तो घर बैठ जाते। दुराब को खड़ा होता देखकर तहमीना बेगम बोली, मुझे ज़रूरी काम है मामा, और आज तो वैसे भी आपकी बहू अपनी अम्मी के यहाँ जा रही है। दुराब की बात पर उन्होंने मोहब्बत पार नज़रों से दानीन को देखा। चलो ठीक है, जाओ तुम लोग। दादो मैं भी मामा के साथ जाऊँ? उसामा ने दानीन को खड़े होते देखा तो फौरन बोला। इसकी मामा कहने पर दानी ने चूंक से देखा। नहीं बेटा, अगर आप भी चले जाओ तो दादो के लिए हो जाएंगी ना, आप अगली बार चले जाना, आज मामा को जाने दो, उन्होंने प्यार से समझाया। ठीक है, मैं अगली बार मामा के साथ जाऊंगा, ठीक है ना मामा? उसामा ने कहकर दानीन की तरफ देखा। इसकी बात पर दानीन बस सर ही हिला सकी। दोनों से मिलकर वो घर के लिए रवाना होगी ताकि जल्द से जल्द अपनी माँ से इस धोखे के बारे में पूछ सके। अम्मी आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई, वो आपको सब बता चुकी थी तो आपने मुझे क्यों नहीं बताया? दानीन चलाते हुए बोली। घर आने के बाद इसे अब मौका मिला था बात करने का। रुबाब बेगम के मुंह से सच सुनकर अब वो अपना सर थामे बैठी थी। बेटा मैं कल ही तुम्हें बताना चाहती थी मगर मौका न मिल सका। वैसे भी इसकी बीवी का इंतकाल हो चुका है, अब इन सब बातों से क्या फ़ायदा? और वो बच्चा, उस बच्चे का क्या? हाँ वो नन्ही सी जान है, अगर तुम माँ बनकर उसे पालोगी तो अल्लाह भी खुश होगा। मैंने ये शादी बहुत सोच समझ कर की है। माँ हो तुम्हारी, बुरा नहीं सोचूंगी। तुम्हारा वाक़या मेरा बहुत अच्छा सोच चुकी हैं, इससे बेहतर था मैं सारी ज़िंदगी कवारी बैठी रहती। वो गुस्से से कहती उठकर अपने कमरे में चली गई। रुबाब बेगम सोच से जाते देखती रही। ना बताकर वो गलती कर चुकी थी और अब एक गलती दानीन करने जा रही थी। आपने अपनी से कोई बात तो नहीं की कल के बारे में? दानीन ने दराब की तरफ देखते हुए पूछा। वो लोग इस वक्त गाड़ी में मौजूद थे। ऑफिस के बाद दराब सीधा इसे लेने आ गया था। नहीं अभी मेरी कोई बात नहीं हुई, लेकिन जल्दी पूछ लूँगा। उन्होंने आपसे ये बात क्यों छुपाई? नहीं अब इसकी ज़रूरत नहीं है, आंटी ने अम्मी को सब बता दिया था। दानीन सर जो अपने हाथों की लकीरों को देते हुए बोली, ओह तो आपकी वालदा ने ये बात छुपाई है? दराब की नज़रें सामने रास्ते पर थी, लेकिन इसके लफ्ज़ों में छुपा तजुर्बा बाखूबी पहचान गई थी। दानीन खामोश रही क्योंकि इस समय सिर्फ इसकी माँ शामिल थी। दिन खामोशी से गुजरते जा रहे थे। तहमीना बेगम वलीमे के बाद अपने शौहर के पास अमेरिका चली गई थी। अपने बिज़नेस की वजह से वो दराब की शादी में आ नहीं सके थे। वैसे भी ये इसकी दूसरी शादी थी जो सिर्फ उसामा के लिए की गई थी। और इधर दानीन तहमीना बेगम के जाने के बाद बस अपने कमरे के होकर रह गई थी। दराब ने भी तहमीना बेगम के जाने के बाद इसे कभी खुद से मुखातिब नहीं किया था। वो सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए थे सिवाय उसामा के। वो जो माँ के आने में की खुशी में फूले नहीं समा रहा था, बुझा बुझा सा रहने लगा था। दानीन के रूखे रवैये ने इसे मायूस कर दिया था। अब तो तहमीना बेगम भी नहीं थी जो इसे संभाल दिया। अभी भी वो लॉन में खड़ा दरख्त के नीचे से दानीन को देख रहा था जो लॉन में रखी कुर्सियों में से एक पर बैठी थी। अपने ऊपर किसी की नज़रें महसूस करके उसने चेहरा मोड़कर देखा था। दरख्त के पीछे से उसामा खड़ा नजर आया। वो झांक झांक से देख रहा था। दानीन ने इसे उंगली के इशारे से पास बुलाया। क्या देख रहे थे वहाँ से? इसके पास आते दानीन ने पूछा। कुछ नहीं, वो सर झुकाए बोला। उदास क्यों हो? नहीं तो मैं उदास तो नहीं हूँ। झूठ। दानीन के कहने पर उसामा नफ़ी में सर हिलाया। मामा की याद आ रही है? नहीं नहीं, दानी ने फिर पूछा। नहीं कहने के साथ इसने रोना शुरू कर दिया। रोते तो इसकी हिचकियाँ बंद गई थी। फिजा में बस इसके रोने की आवाज़ गूंज रही थी। दानी ने हक्का बक्का से इसे देख दी। यकदम उसामा को बाजू से खींच कर सिर्फ खुद से लगा लिया। शी खामोश, रोते नहीं है, मैं हूँ ना आपकी मामा। दानी की बात पे से इस बात में सर हिला दिया। तो बस रोना बंद करो, आपकी मामा आपके पास है, जो भी बात हो आप मुझसे बोलोगे। ओके ओके, वो मुस्कुराते हुए बोला। चेहरा भी आंसू से तर था। दानी ने हाथ बढ़ाकर इसके आंसू साफ किए और गोद में उठाकर अंदर की जानिब ले गई। दराब घर आए तो
पूरे घर में सन्नाटा छाया था। वो चलता हुआ उसामा के कमरे में गया। इसकी आदत थी हमेशा ऑफिस आने के बाद उसामा के पास जाता। अभी भी वो कमरे में दाखिल हुआ था, तवक्को के बरखिलाफ वो कमरे में नहीं था। उसामा उसामा बेटा कहाँ हो? वो आवाज़ लगाता आगे बढ़ रहा था कि दानीन के कमरे से आने वाली आवाज़ पर कदम वही थम के धीरे से और दरवाजे को धकेल कर देखा तो सामने का मंजर हैरान कर गया था। उसामा साहब दानीन की गोद में लेटे टीवी देख रहे थे और दानीन साहबा प्यार से इसके सर पर हाथ फेर रही थी। वो जो शादी के बाद सबसे खिंची खिंची रहने लगी थी, वो आज उसामा के साथ हंस रही थी। ये देखकर दराब जहाँ हैरान था वही खुश भी था। इससे बीवी ना सही उसामा को माँ तो मिल गई। वो दरवाज़ा बंद करता अपने कमरे की जानिब चला गया। दिन खुशगवार गुजरने लगे थे। जहाँ दानीन को अपनी शादी को लेकर दुख था, उसामा के साथ वो सब भूलने लगी थी। एक माँ बनकर माँ की मोहब्बत को जानना तो रुबाब बेगम का फैसला इसे गलत नहीं लगा। वो अपने रवैये की माफ़ी मांगकर अक्सर उसामा के साथ मिलने चली जाया करती थी। उसामा भी नानों का प्यार पाकर खुश हो जाता था। इसे शादी से सबसे ज़्यादा खुशी अगर किसी को मिली थी तो वो उसामा था। अमीना बेगम भी अक्सर फ़ोन करके इनकी खैरियत दरियाफ्त कर लेती थी। सफ़ीना भी अपने बच्चों के साथ कभी कभार मिलने चली जाती थी। वक्त तेज़ी से गुजर रहा था। जहाँ दानीन ने सबके दिल में जगह बना ली थी, वहीं दोराब का दिल भी इसके लिए तड़पने लगा था। वो घर जल्दी आ जाया करता था और दानीन के साथ वक्त गुजारने के लिए बहाने बहाने से इनको बाहर ले जाया करता था। आज भी वो जल्दी घर वापस आ गया था। दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो लॉन में ही वो दोनों क्रिकेट खेलते नजर आए। वो इनके पास ही आ गया। क्या हो रहा है? उफ पापा, आपको इतना भी नहीं पता हम क्रिकेट खेल रहे हैं। वो माथे पर हाथ मारता बोला, दुख दिख रहा है, लेकिन अभी ये सब बंद करो। अभी आपके पप्पो की तरफ चलते हैं। याहू पप्पो के, मैं अभी अपनी मिनी टॉय लेकर आया। उसामा कहता अंदर भाग गया। एक गिलास पानी मिलेगा? दराब उसामा के जाने के बाद दानीन से गोया वो स्वाद में सलाती अंदर जाने लगी। जब अपना हाथ किसी मजबूत गिरफ्त में महसूस किया, मुड़कर देखा दराब इसका हाथ हमें दिलचस्पी से देख रहा था, जबकि दानीन की आंखों में तासुरात कुछ यूं थे। कौन हो भाई? कहाँ से आए हो? क्या चाहिए? थोड़ा वक्त बेटे के बाप को भी दे दिया करे बेगम साहबा, आखिर को ये नाचीज़ भी आपका कुछ लगता है? मैं यहाँ जिसके लिए आई हूँ उसी ही वक्त दूंगी, किसी अरे गहरे के लिए टाइम नहीं है। बेतासु चेहरे से कहते वो हाथ छुड़ा कर अंदर चली गई। दराब को इसको जाता देखकर सर पर हाथ फेंक कर रह गया। सफीना के घर से वापस आकर दानीन सीधा उसामा को सुलाने चली गई। दराब भी अपने कमरे में आ गया था। अभी वो बेड पर लेटा टीवी देख रहा था जब दरवाज़ा खटखटा कर अंदर आई। हाथ में चाय का कप था। चाय दराब ने कप थाम लिए, नज़र इसके चेहरे पर जमी थी। ये चाय मुझे यूं भी भाती है, तुम्हारे रंग से जो मेल खाती है। कप इसे थमा कर जाने लगी कि दराब ने फिर इसका हाथ अपनी मजबूती में ले लिया। क्यों भाग रही हो मुझसे? क्योंकि मुझे आपसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना। दानीन ने चेहरा मोड़े बगैर कहा। क्यों कोई ताल्लुक़ नहीं रखना? बीवी हो तुम मेरी। जो मर्द अपनी पहली बीवी अपने बच्चे की माँ से वफा नहीं निभा सका, ऐसे इंसान को मैं अपना शौहर नहीं मानती। क्या मतलब तुम्हारा? दानीन की बात पर इसने तेवरी चढ़ाकर पूछा। मतलब साफ है, ऐसे मोहब्बत के दावे आप अपनी महरूमा बीवी से भी करते होंगे और अब वो इस दुनिया में नहीं रही तो इसको भूलकर आप इतनी जल्दी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए। कल को मैं मर गई तो फिर यहाँ कोई तीसरी आ जाएगी जिससे ऐसे ही मोहब्बत के दावे किए जाएंगे। इसकी बात पर दराब ने गहरा सांस लेते हुए इसकी तरफ देखा। इसका हाथ छोड़कर अलमारी की जानिब बढ़ गया। दानीन नासमझी से देख रही थी। वही वापस आया था तो हाथ में एक लिफाफा था। इसने दानीन की जानिब बढ़ा दिया। ये क्या है? खोल कर देख लो। इसके हाथ से लिफाफा छपड़ने के अंदाज में लेकर इसने खोला तो शर्दा रह गई। सामने तलाक के पेपर से इसको शौक देखकर दराब ने बोलना शुरू कर दिया। मशाल मेरी खाला की बेटी थी। हमारी शादी घर वालों की मर्जी से हुई थी। मैंने इस शादी को निभाने की हर मुमकिन कोशिश की। ये नहीं कहता कि मैंने कोई गलती नहीं की, ज़रूर की होगी, तभी तो मशाल कभी मेरे साथ खुश नहीं रह सकी। आए दिन हमारा किसी न किसी बात को लेकर झगड़ा हो जाता था और हर बार इसका एक ही मुतालबा होता था कि मैं उसे तलाक दे दूँ। मैंने उसामा की वजह से इसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो ना मानी। एक रात हमारा फिर झगड़ा हुआ जब मेरी बर्दाश्त से बाहर होगी जब बात मेरी बर्दाश्त से बाहर होगी तो मैंने इसे तलाक दे दी। वो इसी वक्त अपने घर चली गई। इसके जाते ही मैंने अपने वकील को फ़ोन करके तलाक के पेपर्स तैयार करने को कहा, लेकिन इस रात अपने घर जाते वक्त इसका रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और वो मौके पर ही जहाँ बाग हो गई। तलाक के बारे में मेरे और मामा के अलावा कोई नहीं जानता था, इसलिए मामा ने आंटी को भी मशाल की मौत का बताया था। अब तो मेरी बीवी हो, इसलिए मेरी ज़िंदगी के हर पहलू के बारे में जाना तुम्हारा हक है। दराब कहकर खामोश हो गया। वो बेयकीनी से इन पेपर्स को देख रही थी जो बगैर किसी के दस्तक के थे। अगर मशाल जिंदा होती तो यकीनन इन पर दस्तक भी हो जाते। सॉरी, मुझे मालूम, खामोश, कुछ मत कहना। मैं समझता हूँ हर औरत ये चाहती है कि जिसे वो अपनी शौहर की वफ़ात के बाद इसकी बेवा बनकर ज़िंदगी गुजार देती है तो इसका शौहर भी इसके बाद इसी का रहे। तुम भी यही चाहती हो। इसलिए जब तुम्हें ये मालूम हुआ कि मशाल की वफ़ात के बाद ये दूसरी शादी है तो तुमने सोचा जो पहली का ना हो सका वो मेरा क्या होगा, है ना? दानिया सर झुकाए खड़ी रही। कहने को कुछ बचा ही ना था। इसका झुका सर देखकर दराब ने इसे शानों से थाम लिया। मैं वन मैन वुमेन हूँ। सॉरी, वन वुमेन
हूँ। सोचा था कि जिससे शादी करूँगा सारी ज़िंदगी इसी के साथ निभाऊँगा, मगर ऐसा नहीं हो सका। लेकिन मैंने तुमसे वादा करता हूँ, जब तक ये जान है तब तक हर सांस तुम्हारे नाम होगी। मेरा साथ दोगी ना? दानी ने आंखों से मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिला दिया और सर इससे सीने पर रखकर आंखें मूंद ली। दराब ने भी इसके गिर्द बाजू का गहरा बना लिया कि तभी दरवाज़ा खुलता और सामा अंदर दाखिल हुआ। मामा पापा इसकी पुकार पर दोनों जल्दी से अलग हुए। अरे मेरा शेर इधर आओ। उसामा भागकर दराब की गोद में चढ़ गया। तुम उठ गया? दानी ने इसके गाल पर पैर करते हुए बोली। हाँ, मैं आज पापा के साथ सोऊंगा, लेकिन मेरे पास इससे भी अच्छा आइडिया है। क्यों ना हम तीनों साथ सोएं? दराब ने दानी को आंख मारी। वो जम गई। फिर तो बहुत मजा आएगा। आज उसामा मामा और पापा तीनों साथ सोएंगे। और उसामा खुश होता दराब की गोद से उतरकर बेड पर जाकर लेट गया। दोनों इसको देखकर हंस दिए। तीनों की ख्वाहिशें तकमील तक जा पहुंची थी। उसामा को इसके माँ बाप मिल गए थे। दानीन को प्यार करने वाला शोहर जो रंग से नहीं उससे प्यार करता था सिर्फ उसका था। और दराब इसको समझने वाला, इसके दुख दर्द में शामिल होकर कदम से कदम मिलाने वाला हमसफर मिल गया था। एक ऐसा दियारे मन जहाँ इनकी ख्वाहिशात को पूरा कर दिया गया था। तो कैसा लगा आपको ये नावल? ये एक शॉर्ट नावल था, अच्छा नावल था। उम्मीद करती है आपको पसंद आया होगा। कोई भी गलती कोताही हुई हो तो उसको इग्नोर कीजिएगा और माफ़ कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले नावल के साथ बहुत जल्द हाजिर होती हैं। तब तक ये दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।